Hi, good morning, students. In my previous lecture on CPC, we had reached the summary procedure. We saw that Order 37, which deals with summary procedure of suits. Now, this is a aberration in the sense that here we are not even asking the defendant to come and defend. Straight away, after seeing the plaint of the plaintiff, what we say, the plaint speaks for itself, and there is hardly any ground for the defendant to negate. And that is the reason why the court can straight away pass a judgment. But then, as I said, no party should be condemned without heard is the basic jurisprudence principle of natural justice. That is why we find that we do need to allow the defendant to defend himself. There should be certain reasons. As a general rule, we must follow the basic principles of natural justice. But then, if there is an iota of doubt that the defendant does have a case, then in these matters, the court must grant leave to the defendant to defend his case. सारा जो मुद्दा है वो ये है कि डिफेंडेंट को अलाउ करें या ना करें, क्योंकि अगर हम अलाउ करते हैं तो फिर ये समरी सूट नहीं रहेगा। एक बार लीव मिल गई, फिर डिफेंडेंट अपना WS डालेगा और फिर एक ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा। सो वेदर वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम अ समरी सूट टू दिस, नाउ दैट इज व्हाट द कोर्ट्स प्रेरोगेटिव इज। Naturally, this prerogative cannot be an arbitrary prerogative. और इसलिए ये क्वेश्चन मेंस का है। Under what conditions can the court grant leave to the defendant to defend his case in a summary suit? You know, when I say a summary, हमने पिछली बार in my previous lecture we saw, summary का मतलब होता है कि it is to be disposed of in a very quick manner, without going through the nitty-gritties of procedure. I gave you the basics of the word summary in my previous lecture, especially in context of CRPC. And here we saw that here the defendant is not even being called. And that is what makes the whole difference here. जो main question बनता है इसमें, what are summary suits? Under what conditions can a judgment be passed straight away in a summary suit? Does the defendant have a right to leave to defend his case? If so, under what conditions? Critically examine. ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं समरी सूट्स पे, लीव वाला। इसके अंदर मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 5 तरह की हैं जहां पे हम लीव अनकंडीशनल भी दे सकते हैं, विद कंडीशन भी दे सकते हैं, और या फिर बिल्कुल मना कर सकते हैं। तीनों चीजें। इसके ऊपर हमारे पास 2-3 जजमेंट्स हैं जो बिल्कुल लैंडमार्क हैं, एंड वी मस्ट राइट दोज जजमेंट्स इन डिटेल। I guess I should dictate it because this is one question I'm expecting in exams. Because tomorrow when you become judges, that is a time when we find that you need to apply these in real life. And this is the reason why these such questions जो आपको real life में use करने पड़ेंगे, ये questions आजकल मेंस में भी आ रहे हैं। My last year's experience has shown that Haryana has been asking very analytical questions now. पहले सिर्फ दिल्ली एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछता था। पिछली बार का मेरा एक्सपीरियंस है कि हरियाणा भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो बिल्कुल एनालिटिकल हैं। सो इन दिस कंटेक्स्ट, लीव के ऊपर, वेदर लीव हैज टू बी ग्रांटेड और नॉट, इफ यस, कैसी लीव होगी, लेट्स क्विकली राइट डाउन, आई विल डिक्टेट। द क्रक्स ऑफ वेरियस जजमेंट्स on Order 37 has been summarized in Sunil Enterprises versus SBI, Commercial and International Bank Limited. The summary can be written in the following points.
Firstly, if the defendant satisfies the court that he has a good defense to the claim on merits, underline the word merits, the defendant is entitled to unconditional leave to defend. Unconditional को inverted commas में या highlight कर दो. Second, if the defendant raises a triable issue indicating that he has a fair or bona fide or reasonable defense, though not a outstanding or a very good defense, still, in the interest of natural justice, the defendant is entitled to unconditional leave to defend. ये दो हैं हमारी अनकंडीशनल लीव्स जहां हम डिफेंडेंट को हर हालत में डिफेंड करने का राइट देंगे. सी, if the defendant discloses such facts as may be deemed sufficient to entitle him to defend. For example, his affidavit discloses that during the trial he may be able to establish a defense to the plaintiff's claim. Then the court may impose conditions at the time of granting leave to defend the conditions. So second, अब ये थर्ड आ गया आपका कंडीशनल लीव, जहां पे सफिशिएंट तो है और वो एफिडेविट भी दे रहा है कि टाइम ऑफ द ट्रायल पे मैं एस्टैब्लिश कर दूंगा कि मेरा डिफेंस है प्लेंटिफ के क्लेम के खिलाफ. ऐसे मामले में उसको हम अनकंडीशनल लीव नहीं, अब कंडीशनल लीव देंगे. पर जो कंडीशनल लीव है वो not by payment of security in the court. तो कोई भी हम कंडीशनल लीव देंगे, बट ये नहीं कि हम कहेंगे कि जी पहले पैसे पूरा जमा कराओ, वो अलग है. चौथा, if the defendant has no defense or if the defense is a sham or practically moonshine, the defendant is not entitled to leave to defend. जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शैम है, मूनशाइन है, वहां पे नो लीव टू डिफेंड. Last point, if the defendant has no defense or if the defense is a moonshine or it is a sham and the court wants to show mercy to the defendant, then the court can show mercy to the defendant by enabling him to try and work out a defense. But then it has to protect the plaintiff also. So to protect the plaintiff, the court shall now impose a condition that the amount claimed by the plaintiff should be first deposited in the court before leave to defend is being given. ये 5 बहुत ब्यूटिफुली समड अप वेज है. 2 जगह तो अनकंडीशनल लीव है जहां क्लियर डिफेंस है या जहां रीजनेबल डिफेंस है, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है पर लगता है थोड़ा बहुत है, आयोटा है, और वो एफिडेविट से कह रहा है कि जी मैं कर दूंगा, तो वहां कंडीशनल दे दो. पर कंडीशन में ये नहीं है कि पूरा पैसा जमा कराओ. जहां बिल्कुल कुछ नहीं है वहां रिजेक्ट कर दो. अगर रिजेक्ट करते वक्त वो बहुत हाई तो मचाता है, बहुत रोता है, तो कहो ठीक है मैं तुम दो, बट प्लेंटिफ को भी मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो जो पैसा वो मांग रहा है वो पहले पूरा सिक्योरिटी जमा कराओ, तब हमें तुम लीव टू डिफेंड करेंगे. I hope everybody is clear about this landmark judgment and all the aspects laid down by this judgment. Also, there is another judgment, Southern Sales and Services versus Sour Milk Design, SAEUERMILCH,
Southern Sales and Services Limited, Saur Milch Design and Handles, HANDELS. इसमें एक चीज बताई गई, अनकंडीशनल लीव टू डिफेंड अ सूट शैल नॉट बी ग्रांटेड unless the amount as admitted to be due by the defendant is deposited in the court. सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि सपोज डिफेंडेंट कहता है जी मेरा इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा बनता है, तो जितना वो एडमिट कर रहा है उतना पैसा पहले जमा कराए, तब आगे बढ़ सकता है. We then have another important judgment, Nibha Kapoor, NEEBHA, Nibha Kapoor versus Jayanti Lal, JAYANTILAL, Jayanti Lal Khandelwal, 2008 Supreme Court. In this judgment, the Honorable Supreme Court held that the underlying public policy behind Order 37 is expeditious disposal of suits of commercial nature. It provides for such disposal as expeditiously as possible by prescribing a time frame. The idea behind a summary suit, I'm quoting Nibha Kapoor, the idea behind a summary suit is speedy remedy. But one must not forget, justice harried is justice buried. Justice hurried, HURRIED, justice hurried is justice buried. A grant of leave to defend, no doubt, delays the trial, but it will be a travesty of justice where a plaintiff, on basis of some photocopied documents, reproducing only the relevant extracts and without any evidence and without any cross-examination, gets a decree solely on the basis that he has been able to make a prima facie case, that too before a trial court. A few years of a trial is better than a scenario where a decree has been passed without giving proper opportunity to defendant. Audi alterum partem is one of the basic features of our constitution, and a fair hearing should be given to all concerned. If the case of the plaintiff is genuine, in any case, he will be entitled to costs and interests. So even if there is a delay, he shall get compensation by costs. Hence, no prejudice is caused to the plaintiff, as it is only a matter of time that he gets a decree in his favor along with the requisite costs and interests. Sometimes even for a bona fide defendant, it may become a horrifying experience to get even a conditional leave to defend granted to him. The defendant hence is only required to show that a fair or a bona fide or reasonable defense, though not a wonderful defense, exists. Hence, even if prima facie it appears that there is merits in the defense of the defendant, leave should be granted to the defendant. So when should Order 37 CPC be used? Order 37 is best suited
for cases in which a defendant does not have a case at all and the suit is prolonged for years. Also in cases in which loans are taken from the banks and borrowers disappear without any trace. Order 37 comes in very useful and handy. Order 37 is useful as on the basis of loan documents, it is easier to get a decree from court within a short time, and all that is left to the bank is to find the defendant and execute the decree against him. In fact, most borrowers who are otherwise not scared of recovery agents are scared of orders, decrees and reprimands by the courts. ये सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के एक्सर्प्ट्स थे. अगर समरी प्रोसीजर पे आपको 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको डिक्टेट कराया है, इसको डिटेल में लिख के, पॉइंट्स लिख के इसको करना है. I hope everybody is clear on these aspects. Now that we are clear with the jurisprudence and the interpretations and other aspects given by the Honorable Supreme Court, we now go on to Order 37 per se. Order 37, Summary Procedure. Rule 1. Rule 1 is important from prelims point of view. Rule 1, Sub-Rule 1. This order shall apply to the following courts, namely A. High Courts, City Civil Courts and Courts of Small Causes. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या समरी प्रोसीजर हाई कोर्ट फॉलो कर सकता है, क्या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस फॉलो कर सकता है. प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना. बी अदर कोर्ट्स, तो सारे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, कॉजेस, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स और बी अदर कोर्ट्स. अदर कोर्ट्स के साथ हमने प्रोवाइजो पढ़ना है. Provided that in respect of the courts referred to in clause B, the High Court may by notification in the official gazette restrict the operation of this order only to such categories of suits as it deems proper. तो बाकी जो कोर्ट्स हैं उनको सिर्फ पावर समरी प्रोसीजर की तब आएगी अगर हाई कोर्ट ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल गैजेट में कि ऐसी इन कैटेगरीज ऑफ सूट्स को ये अदर कोर्ट्स समरी तरीके से ट्राई कर सकते हैं. तो दिस द पावर्स ऑफ अदर कोर्ट्स विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द अप्रूवल बाय द हाई कोर्ट्स. वो भी कौन से सूट्स वो ट्राई कर सकते हैं. एंड मे ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस may require by subsequent notification in the official gazette further restrict, enlarge or vary the categories of suits to be brought under the operation of this order as it deems proper. अब अगर उनको कुछ बढ़ाना है, कुछ खत्म करना है, चेंज करनी है पावर्स, तो हाई कोर्ट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के साथ ही कर सकता है. So I hope I'm clear on this, that all courts have the power, all civil courts, city civil courts, courts of small causes and high court, and other courts के लिए वही cases जो high court अब prescribe कर रहा है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके, और उनको कौन से क्लासेस ऑफ केसेस हैं, और अगर उनका चेंज करना है, वेरी करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो फिर वो ऑफिशियल गैजेट में इट विल मेक अ चेंजेस. सब रूल 2, subject to the provisions of sub rule 1,
The order applies to the following classes of cases, suits namely. अब ये क्वेश्चन भी आपका मेंस का है 5 नंबर का. समरी सूट्स कौन से सूट्स पे चलेंगे? What will be the subject matter of summary suits? Or which suits can follow the summary procedure? एक तो मैंने आपको बैंक लोन्स का भी बताया था, नीबा कपूर का जो मैंने लिखवाया है वो भी कोट करना है आपको. बट हमारे पास बेयर एक्ट में दिया गया है, इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में दिया गया है कि कौन से मैटर्स आएंगे अंडर summary suits. Let's see those. The order applies to the following classes of suits, namely: A. Suits upon bills of exchange, hundies and promissory notes. तो bills of exchange, hundies, promissory notes, ये तीनों वर्ड्स आपके डिफाइंड हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में. बिल ऑफ एक्सचेंज एक बिल है, एक कागज है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं आपको एक राइट देता हूं कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा लेने का इमीडिएट. बिल ऑफ एक्सचेंज की एक स्पीशी होती है चेक. चेक इज ऑल्सो डिफाइंड इन द एनआई एक्ट. Hopefully I should be able to get a teacher for you to teach you NI Act. I really wish I had the time to teach you all the acts, but मेरे पास इतने मेजर सारे एक्ट्स होते हैं और इतना डिटेल में मैं जाता हूँ तो वो मैं आई विश काश मैं ये पढ़ा सकता. बट देन आई विल गेट यू अ गुड टीचर. आई वॉन्ट टू टीच यू NI Act एटलीस्ट द बेसिक्स. क्योंकि मैंने क्या नोट किया है कि NI Act या ऐसे जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. अब इंटरव्यू में तो आप मना नहीं कर सकते ना कि सर हमारा तो NI Act इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो यू मस्ट नो एटलीस्ट बेसिक्स. उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सो नथिंग मच टू वरी, विल डू दैट. सो सूट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज. हुंडीज बेसिकली हमारी एक यूजेजेस हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के. हुंडीज जो हैं वो हमारे खासकर बिजनेस वर्ल्ड में, कमर्शियल में, कमर्शियल हमारे यूजेजेस में चेक नहीं चलते हैं, हुंडीज चलती हैं. हुंडी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको आज आपने हमारा आपस में बिजनेस चलता है, आपने आज मेरे को 100 चीजें, कोई एक चीज भेजी, सपोज आपने 100 टेबल मुझे बेचे, मैंने आपको पैसे दे दिए, सपोज मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, 1,10,000 देना था, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया. मैं भी आपको कुछ रॉ मटेरियल भेजता हूं, मैंने आपको भेजा, आपने मुझे वापस 90,000 देना था. तो अब क्या हुआ, 1 लाख की हुंडी आपके पास गई, 90,000 की हुंडी मेरे पास आ गई. फिर कल को हमारा जो ऐसे ट्रांजैक्शन चलते रहेंगे, हम टोटल हुंडीज आपस में इतना करते रहेंगे. एंड में हम बैठेंगे हफ्ते में या जब भी, और आप अपनी अपनी हुंडीज एक्सचेंज कर लेंगे. जितना सम टोटल जिसका ड्यू होता है वो उसको उतना दे देता है. सो हुंडीज पे व्यापार चलता है. दैट इज व्हाई हुंडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. there is a recognition in the commercial transactions evidence act है हमारा एक, जिसके अंदर बहुत पुराना ये हुंडीज के जो चाल चलन है उनको एज एविडेंस मानता है. हुंडीज बिल्कुल कट एंड राइट होती है, इतना पैसा देना है आपने, इतना पैसा लेना है. सो दैट इज व्हाई ये सब यहां आ रहे हैं. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और प्रॉमिसरी नोट्स. बी, suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt. तो जो डेट है, जो लिखा हुआ है, फाइनल है, और लिक्विडेटेड डिमांड या फिर लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी है, पेबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट अराइजिंग. तो दूसरा है कोई अगर डेट है जो लिखा हुआ है, जो क्लियर है, या कोई अगर लिक्विडेटेड डिमांड है पैसे में विद और विदाउट इंटरेस्ट, जो कहां से निकला है, जो डेट कहां से बना है. ए, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि क्लियर है, कल को ये ना वो बोले कि नहीं जी पहले ये डिटरमिन करो कि कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं, रिटर्न है. बी, ऑन एन इनएक्टमेंट वेयर द सम सॉट टू बी रिकवर्ड इज अ फिक्स सम ऑफ मनी. यहाँ कोई ऐसा इनएक्टमेंट है जहां जो पैसा है वो फिक्स्ड होता है कि जी इतना पैसा मिलेगा. और इन द नेचर ऑफ अ डेट अदर देन अ पेनल्टी, और ऑन अ गारंटी.
whether the claim against the principal is in respect of a debt or liquidated demand. यहाँ कोई गारंटी है कि ये नहीं होगा तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए गारंटी है मैं देता हूं, तो ऐसी चीज है जो फिक्स्ड है. और suit for recovery of receivables instituted by any assignee of a receivable. जहां पे पैसा रिसीव करना है उसने आगे दे दिया है, मैंने अपने पूरे के पूरे राइट से असाइनी को दे दिए, अब वो सूट डाल रहा है डेट का. तो कायदे से ये सारी चीजें क्या हैं, जहां पे ये नहीं एडजुडिकेट करना मैंने अभी कि ये पैसा ड्यू है कि नहीं, इन सब चीजों में कागज ही दिखा रहा है कि ये पैसा ड्यू है. सो प्लीज रिमेंबर the instrument in the hand of the plaintiff itself is enough to prove कि इतना पैसा ड्यू है, डेट निकल चुकी है और डिफेंडेंट पैसे नहीं दे रहा है. तो ये सारे कट एंड ड्राइड हैं. प्लीज रिमेंबर, जहां हमने एडजुडिकेट करना है कि इतना पैसा बनता है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिर सूट में जाएगा. तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं है, तभी हमने कहा डेट है या लिक्विफाइड मनी के अंदर डिमांड है इसकी. That is the reason why there is no scope for adjudication of the quantum of money. वो पहले ही तैयार है, वो तो क्लियर है. अब सिर्फ ये देखना है कि कुछ इसके ऊपर डिफेंडेंट को कहना है कि नहीं कहना. तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ summary suits must pertain to a sum of money which is already asserted. If it is still to be adjudicated, then naturally it can't come under a summary suit. That is why all these languages very clearly show that these are all matters which are already cut and dried and need not go for any further adjudication as far as the quantum of money is concerned. I hope I'm clear on sub rule 2. इसके ऊपर I would also like to give up one aspect. इसका जो कमेंट्स में सिकॉम लिमिटेड है उसके अंदर, इन अ समरी सूट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड एट एनी टाइम टू अबैंडन और गिव अप अ पार्ट ऑफ द क्लेम यूनिलैटरली. एक पावर इसके पास है. प्लेंटिफ वैसे भी डोमिनेंस लेटस होता है, अगर प्लेंटिफ चाहे कभी भी तो अपना पूरा या कोई पार्ट ऑफ द क्लेम कभी भी यूनिलैटरली छोड़ सकता है. ओके, ये तो था इसका कौन से कोर्ट्स, कौन सा सब्जेक्ट मैटर. अब तीसरा पार्ट हम आते हैं उसके प्रोसीजर पे. प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ये जो हमारे रूल्स लिखे गए हैं ये इन्हीं प्रोसीजर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 की तरह लिखे गए हैं. लेट्स गो टू स्टेप 1. रूल 2. A suit to which this order applies may, if the plaintiff desires to proceed hereunder, be instituted by presenting a plaint which shall contain these 3 things. क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, how do summary suits start? With an application, with a plaint, with a petition. It starts with a plaint. So एक चीज क्लियर रखनी है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. A summary suit also starts with a plaint. उस प्लेंट में क्या क्या चीजें होंगी? A, a specific averment to the effect that the suit is filed under this order. एक specific ये averment होगा कि ये summary suit है. B, that no relief which does not fall within the ambit of this rule has been claimed in the plaint. Subject matter वही है जो समरी सूट में अलाउड है. इसके अलावा हम और कोई भी रिलीफ नहीं मांग रहे. ये दूसरी चीज. तीसरी, द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन immediately below the number of the suit in the title of the suit, namely under order 37
of CPC 1908. तो एक जो टाइटल है उसके अंदर ऑर्डर 37 मेंशन करना जरूरी है. तो टाइटल ऑफ द सूट में इट इज बीइंग नाउ टेकन अप अंडर ऑर्डर 37 CPC. तो पहला स्टेप क्या हो गया? प्लेंटिफ ने प्लेंट इंस्टीट्यूट की. प्लेंट इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक मेंशन है उसमें कि ये मेरा सूट समरी सूट है. सब रूल 2. The summons of the suit shall be in form number 4 of Appendix B or in such form as may from time to time be prescribed. Prescribed किससे होता है? हाई कोर्ट रूल से. तो फॉर्म नंबर 4 जब हम देखते हैं अपेंडिक्स बी में, when I go to Appendix B, form number 4, whereas so and so has instituted a suit against you under order 37 of the code of CPC for rupees so and so and interest, you are hereby summoned to cause an appearance, to be entered by for you within 10 days from the service thereof, in default whereof the plaintiff shall be entitled to obtain a decree for the said sum. तो अब सीधा एक पहला जो समन जाएगा, समरी सूट में डिफेंडेंट को 2 बार 2 तरह के समन जाते हैं. पहला समन जाता है समन फॉर अपेयरेंस, दूसरा समन जाता है समन फॉर जजमेंट. ये क्या है भाई, हम देखते हैं. तो पहला हमने क्या हुआ, अभी जो हमने फॉर्म पढ़ा उसमें क्या लिखा है कि आपके खिलाफ ऑर्डर 37 ने, प्लेंटिफ ने इतने पैसे के लिए, इतने इंटरेस्ट के लिए आपके खिलाफ डाला है. आप 10 दिन के अंदर अंदर अपना अपीयरेंस डालो. क्यों? अगर डिफेंडेंट को पता है ये तो मैंने देना ही है, तो वो अगर अपीयरेंस नहीं डालता तो इसका मतलब है वो एडमिट कर रहा है, इंप्लाइड एडमिशन है कि जो आप कह रहे हो सही है. और अगर वो एडमिट कर रहा है और वो चुप रहता है तो ऑटोमेटिकली कोर्ट अब क्या करेगी? सीधा समरी सीधा डिक्री पास कर देगी. सो नाउ देयर विल बी अ स्ट्रेट वे डिक्री, अ जजमेंट इन द प्लेंटिफ्स फेवर. खत्म. तो पहला स्टेप समन जाएगा, समन जाएगा डिफेंडेंट को अलॉन्ग विद द प्लेंट की कॉपी कि 10 दिन के अंदर अंदर अपना अपीयरेंस डालो. अगर आप नहीं डालते तो सीधा जजमेंट एंड डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में हम इशू कर रहे हैं. सब रूल 3, द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट referred to in sub rule 1 unless he enters an appearance. So step number 1, he must enter an appearance. तो पहला स्टेप क्या था? उसने प्लेंट इंस्टीट्यूट की, एक प्लेंट इंस्टीट्यूट की अंडर समरी प्रोसीजर. दूसरा समन भेजा गया डिफेंडेंट को अपेंडिक्स बी के फॉर्म नंबर 4 में कि तुम अपनी अपीयरेंस डालो. The defendant shall not defend. अगर वो अपनी अपीयरेंस नहीं डालता है, बाद में वो फिर डिफेंड नहीं कर सकता. So the defendant shall not defend the suit referred to in sub rule 1 unless he enters an appearance, and in default of his entering an appearance, the allegations in the plaint shall be deemed to be admitted. और अगर वो अपना अपीयरेंस नहीं डालता तो ये माना जाएगा कि जो जो प्लेंटिफ ने बोला है वो एडमिट कर रहा है. और अगर एडमिट कर रहा है तो एंड द प्लेंटिफ shall be entitled to a decree for any sum not exceeding the sum mentioned in the summons, together with the interest at the rate specified, if any, up to the date of the decree, and such sum for costs as may be determined by the High Court from time to time by rules made in this behalf, and such decree may be executed forthwith.
इस सब रूल में क्या क्या चीजें आ गई? डिफेंडेंट को देयर विल बी अ समन्स विल बी सेंट along with a copy of the plaint कि तुम अपना अपेयरेंस डालो। वो अगर अपेयरेंस डाल देता है, गुड इनफ, फिर तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अगर वो अपना अपेयरेंस नहीं डालता, देन इट विल बी डीम्ड कि वो एडमिट कर रहा है, और अगर एडमिट कर रहा है तो अब सीधा डिक्री उसके खिलाफ पास हो जाएगी। नॉट ओनली डिक्री पास हो जाएगी, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। एग्जीक्यूशन के ऑर्डर सीधा इशू हो जाएंगे। डिक्री में क्या क्या आएगा? जितना सम प्लेंटिफ ने मांगा है वो, प्लस जितना इंटरेस्ट होता है डिक्री आने तक वो, और जो कॉस्ट है। अब पॉइंट याद है कि डिफेंडेंट तो आया नहीं, प्लेंटिफ ने भी एक बार बस प्लेन डाला है 27 में, दैट से 37 में बस, और तो कुछ किया नहीं है। तो ऐसे मामलों में कॉस्ट क्या होगा? तो इसीलिए लिखा है यहां पे कि कॉस्ट हेयर विल बी डिटरमिन्ड बाय द हाई कोर्ट। तो अपने रूल्स में हाई कोर्ट कॉस्ट डिटरमिन कर देगा, और उसके मुताबिक ही नाउ द मनी विल बी एडेड एज कॉस्ट्स। तो डिक्री के अंदर क्या क्या आएगा इसमें? जो सम मांग रहा था वो, या जो इंटरेस्ट भी पहले मांग रहा था, उसके बाद डिक्री तक का इंटरेस्ट जिस दिन से उसने प्लेंट डाली है, और तीसरा कॉस्ट्स जो अब हाई कोर्ट डिटरमिन करेगा कि समरी प्रोसीजर्स में ये कॉस्ट होनी चाहिए। रूल 3। अब ये जो था हमारा, ये था स्टेप 2 कि डिफेंडेंट ने अपना अपेयरेंस डालना है, नहीं डालता तो उसके खिलाफ डिक्री पास हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टेप 1 एंड 2? जो अभी हमने स्टेप 1 एंड 2 पढ़ा है, उसका प्रोसीजर क्या है? वो है रूल 3। In a suit to which this order applies, the plaintiff shall, together with the summons under Rule 2, serve on the defendant a copy of the plaint. तो समन के साथ साथ क्या जाएगा? Copy of the plaint and annexures thereto. कोई बाय चांस annexure लगाए हैं वो भी जाएंगे। And the defendant may at any time within 10 days of such service enter an appearance either in person or by pleader, and in either case he shall file in court an address for service of notices on him. तो अब तो पहला पॉइंट तो ये है कि कॉपी ऑफ द प्लेंट जाएगी साथ साथ नोटिस के, जो हमारे अपेंडिक्स बी का फॉर्म 4 का नोटिस है उसके साथ प्लेंट की कॉपी जाएगी, और सारे जो भी कागज हैं वो सारे इसकी कॉपी जाएंगी। और अब अगर डिफेंडेंट चाहे तो 10 दिन के अंदर अंदर, जब उसको सर्विस हो गया है, ये समन और प्लेंट की कॉपी मिल गई, उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही विल खुद या अपने प्लीडर के थ्रू ही विल एंटर एन अपेयरेंस करेगा कोर्ट में, और एक एड्रेस फाइल करेगा कोर्ट में कि जी मेरे को सारे के सारे नोटिस मिल गए हैं, ये मैं मानता हूं और मैं अब आना चाहता हूं। ना क्योंकि ये समरी प्रोसीजर है, तो इसीलिए इवन अगर समन्स उसके घर पे हम छोड़े, इट विल बी डीम्ड गुड सर्विस। यानी कि ऑर्डर 5 का हमने बहुत सारा डाइल्यूशन किया है। वहां तो था कि किसी भी हालत में हम इंश्योर करें कि डिफेंडेंट को मिल रहा है। अब ये क्योंकि समरी प्रोसीजर है, तो अगर वो अब अवॉइड करता रहे सर्विस ऑफ समन्स तो फिर लटक जाएगा मामला। इसीलिए अगला सब रूल इसी चीज को डील करता है। Unless otherwise ordered, all summons, notices, and other judicial processes required to be served on the defendant shall be deemed to have been duly served on him if they are left at the address given by him for such service. तो जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट इन पर्सन मिले, अगर वो नहीं मिलता, एक बार गए दूसरी बार गए, वो लगता है अवॉइड कर रहा है, उसके घर पे अगर आप छोड़ आए, दैट विल बी डीम्ड एज गुड सर्विस। उसका रीजन ये है कि ये समरी प्रोसीजर है। सब रूल 3,
On the day of entering the appearance, notice of such appearance shall be given by the defendant to the plaintiff's pleader. अब जब डिफेंडेंट आ गया तो क्या करेगा? वो जब आ रहा है तो अब प्लेंटिफ के प्लीडर को नोटिस देगा कि सर मैं आ गया, आपने मुझे बोला था कि आओ, मैं आ गया. A notice of such appearance shall be given by the defendant to the plaintiff's pleader, or if the plaintiff sues in person, then to the plaintiff himself. अगर खुद है तो plaintiff को दे देंगे. Either by notice delivered or sent by a prepaid letter directed to the address of the plaintiff's pleader or the plaintiff as the case may be. और उसको हम क्या करेंगे? या फिर उसको हम प्रीपेड लेटर, रजिस्टर्ड लेटर से भेज देंगे जो प्लेंटिफ के एड्रेस पे, अगर वो खुद आ रहा है, और अगर प्लेंटिफ का प्लीडर है तो उसकी यहां पे हम भिजवा देंगे. अब आता है स्टेप नंबर 3, सब रूल 4. इफ द डिफेंडेंट अपीयर्स एन अपीयरेंस, डिफेंडेंट कहता है नहीं जी मैं नहीं मानता, मैं तो आ गया हूं, मैं इस चीज को आई एम गोइंग टू नेचुरली, आई एम गोइंग टू नाउ challenge this. So now if the defendant enters an appearance, the plaintiff shall thereafter serve on the defendant a summons for judgment in form number 4A in appendix B. अब अगर डिफेंडेंट आ गया, पहला स्टेप था उसने अपीयरेंस कर दिया. जब अपीयरेंस हो गया और उसने नोटिस दे दिया प्लेंटिफ को कि जी मैं तो अपीयर हो गया, अब प्लेंटिफ उसको दूसरा समन भेजेगा. दूसरा समन क्या भेजेगा? जो हमारा फॉर्म नंबर 4A है, अपेंडिक्स बी का अगला ही फॉर्म है, उसमें वो कहेगा that now I am sending you a summon for judgment. क्यों ना आपके खिलाफ, आप आगे गुड इनफ, थैंक यू, बट अब क्यों ना आपके खिलाफ हम सीधा जजमेंट पास करते हैं. मामला बिल्कुल क्लियर है, तो why should we not pass a judgment? Do you have anything to say on this? तो यही चीज आती है इसमें, स्टेप नंबर 3. If the defendant enters an appearance, the plaintiff shall thereafter serve on the defendant a summons for judgment in form number 4A in appendix B or such other form as may be prescribed from time to time, returnable not less than 10 days from the date of service, supported by an affidavit verifying the cause of action, the amount claimed, and stating that in his belief there is no defense to the suit. इस समन के साथ क्या चीज जाएगी? एक एफिडेविट जाएगा, एक एफिडेविट आएगा. तो जब समन फॉर जजमेंट डालता है प्लेंटिफ, तो फिर 3 चीजों का एफिडेविट भी डालेगा. पहला, ये कॉज ऑफ एक्शन है. दूसरा, इतना क्लेम है मेरा अमाउंट का. और तीसरा, कोई भी डिफेंस नहीं है. ये 3 चीजों की वेरिफिकेशन थ्रू एफिडेविट प्लेंटिफ डालेगा. तो स्टेप नंबर 3 इज समन फॉर जजमेंट. पहले हमने डाला था समन फॉर अपीयरेंस, वो आ गया. अगर आया नहीं तब तो बात ही खत्म, तो वहीं पास हो गया. अब वो आ गया, जहां वो आ गया वहां पे अब समन फॉर जजमेंट आ गया. अब फिर बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द डिफेंडेंट. अब डिफेंडेंट कहेगा नहीं सर, मैं इस समन ऑफ फॉर जजमेंट को नहीं मानता, मुझे आप लीव दीजिए डिफेंड करने को. मैं जजमेंट को इसको नहीं मानता हूं कि ये जजमेंट दे सीधा. These are not proper grounds. I'm going to defend. इसीलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लीव टू डिफेंड. द डिफेंडेंट में at any time within 10 days, अब जब उधर भी 10 दिन था, यहां भी 10 दिन है, so within 10 days from the service of such summons for judgment by affidavit or otherwise, disclosing such facts as may be deemed sufficient to entitle him to defend, apply on such summons for leave to defend such suit. अब वो 10 दिन के अंदर अंदर जैसे उसको समन मिलता है, वो एफिडेविट या और जैसे भी तरह से, he may
now write that I want leave to defend. Apply on such summons for leave to defend such suit, and leave to defend may be granted to him unconditionally or conditionally, or upon such terms as appear to the court to be just. So अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। डिफेंडेंट ने अपना पेरेंट्स डाल दिया, उसने उसको समन फॉर जजमेंट दे दिया कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाए, ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये क्लेम है, और ये तुम्हारा कोई डिफेंस नहीं है, मैं एफिडेविट देता हूं। डिफेंडेंट अब अपना जवाब देता है, एफिडेविट से वो भी जवाब देता है और कहता है मेरा कॉज ऑफ एक्शन आपका बनता ही नहीं है, या ये अमाउंट नहीं है, या मेरा डिफेंस है, डिटेल्स लिखता है। कोर्ट अब उसको बहुत ध्यान से पढ़ता है, जो हमने सीमा वाले केस में, नीभा कपूर वाले केस में वो सब देखा, और अब कोर्ट डिसाइड करता है कि लीव देना है कि नहीं देना, लीव अनकंडीशनल देना है, कंडीशनल देना है, कि उससे सिक्योरिटी रखवानी है। प्रोवाइडेड that leave to defend shall not be refused unless the court is satisfied that the facts disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense to raise, or that the defense intended to be put up by the defendants is frivolous or vexatious. So provided कि कोर्ट इन नॉर्मल कंडीशंस, जो नीभा कपूर ने भी हमें बताया, नॉर्मल कंडीशंस में अलाउ करेगा, बिकॉज नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि ही मस्ट बी गिवन द लीव। सो दिस इज द रीजन व्हाई द प्रोवाइजो मेक्स इट क्लियर कि कोर्ट तभी मना करेगा अगर उसको लगता है कि बिल्कुल ही कोई डिफेंस नहीं है, फ्रिवलस है, मूनशाइन है, तब, अदरवाइज वो अलाउ करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर that where a part of the amount claimed by the plaintiff is admitted by the defendant to be due from him, leave to defend the suit shall not be granted unless the amount so admitted to be due is deposited by the defendant in the court. जहां पे डिफेंडेंट अमाउंट के ऊपर लड़ाई कर रहा है, कहता है जी प्लेंटिव मेरे से मांग रहा है 10 लाख रुपए, मैं मानता हूं 6 लाख रुपए देना है, 4 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो अब क्या करेगा? कोर्ट कहेगा ठीक है तुम 6 लाख तो मान रहे हो ना, तो पहले 6 लाख रुपए जमा कराओ, 6 लाख जमा कराने के बाद 4 लाख की लड़ाई चलती है, तो पहले अगर आप 6 लाख एडमिट कर रहे हो तो 6 लाख तो जमा कराओ पहले, बाकी 4 लाख की आगे फिर अलाउ करते हैं आपको, डिफेंड करो फिर। तो जहां पे कोई भी अमाउंट डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है वो पहले जमा कराना, तब आगे बढ़ेगी गाड़ी। सब रूल 6। Now, sub-rule 6 is step number 4. At the hearing of such summons for judgment, अब hearing शुरू हो गई। If the defendant has not applied for leave to defend, or if such application has been made and is refused, the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith. जहां उसने अप्लाई नहीं किया, मतलब है वो मान गया, और यहां उसने डाला है कि मुझे लीव टू डिफेंड हो, फ्रिवलस है, मूनशाइन है, वो कोर्ट कहती है नहीं दूंगा, नहीं मिलने की आपको, तो फिर सीधा क्या होगा? प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ जाएगा। बी, इफ द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू डिफेंड एज टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द क्लेम, द कोर्ट और जज मे डायरेक्ट हिम टू गिव सच सिक्योरिटी और विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट और द जज, एंड दैट ऑन फेलियर to give such security within the time specified by the court or judge to carry out such other directions as may have been given by the court or judge, the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith. अब इसी ऑर्डर में, इसी रूल में, सब रूल में सिक्योरिटी डालने का प्रावधान है। जहां पे डिफेंडेंट को हमने डिफेंड करने का इजाजत दे दी, चाहे पूरा या पार्टली, जितना वो, अगर पार्टली वो एडमिट कर चुका है, बाकी पार्ट के लिए लड़ रहा है तो अब कोर्ट इसको एक और चीज भी कर सकती है कि सिक्योरिटी जमा कराओ और इतने दिन के अंदर अंदर कराओ।
अगर वो सिक्योरिटी जमा करा देता है, गुड इनफ, फिर चलता रहेगा। अगर नहीं कराता तो देन सीधा जजमेंट या डिक्री फेवर में प्लेंटिफ के पास हो जाएगी। सब रूल 6, the court or judge may, for sufficient cause shown by the defendant, excuse the delay of the defendant in entering an appearance or in applying for leave to defend the suit. अब ये चीज हमें खास ख्याल रखनी है कि हमें नेचुरल जस्टिस कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर कोई जेन्युइन रीजन है कि डिफेंडेंट नहीं आ पाया, नॉन अपेरेंस, डिले आने में या लीव टू डिफेंड के लिए, एक जनरल गोल्डन स्ट्रेन है सीपीसी में। प्रोसीजरली अगर कोई नुकसान, कोई गलत हो गया कुछ, तो उसकी भरपाई सेम कोर्ट कर सकता है। जहां प्रोसीजर्स के बेस पे हम आपको अलाउ नहीं कर रहे, 10 दिन का टाइम दिया, आप नहीं आए। ये चीज हमने देखी थी ऑर्डर 9 में कि जहां पे डिसमिसल ऑफ सूट है, एक्स पार्टे है, दोनों तरफ की कार्रवाई, दोनों तरफ की सुनवाई नहीं हुई, तो कोर्ट को ही पावर थी कि अपना ही ऑर्डर रिसिंड कर दे या फिर वो सफिशिएंट कॉज पे उनको अलाउ कर दे। सेम प्रिंसिपल यहां भी फॉलोड है कि जहां डिफेंडेंट कोई सफिशिएंट कारण की वजह से नहीं आ पाया या सफिशिएंट कारण से लीव टू डिफेंड नहीं कर पाया, ऐसे केस में अगर सफिशिएंट कारण हो तो फिर उसको डिले वेव ऑफ करके उसको मौका दिया जा सकता है। सब रूल 4, पावर टू सेट असाइड डिक्री। सेम प्रिंसिपल ऑर्डर 9 में हमने पढ़ा था कि इवन एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड बाय द सेम कोर्ट। सेम चीज यहां है। आफ्टर डिक्री, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स और इंटरव्यू का है, ध्यान रखना है। आफ्टर डिक्री the court may under special circumstances set aside the decree and if necessary stay or set aside execution and may give leave to the defendant to appear to the summons and to defend the suit if it seems reasonable to the court so to do and on such terms as the court thinks fit. Not only can it allow the defendant, if special circumstances and if he shows sufficient reason कि तुम आ जाओ, दोबारा आ जाओ, यहाँ लेट हो गए, कोई बात नहीं। इवन अगर डिक्री पास हो गई है और बाद में सफिशिएंट रीजन मिल जाता है तो कोर्ट अपनी ही डिक्री को रिसेंड कर देगा या एग्जीक्यूशन का अगर ऑर्डर हो गया है उसको रोक देगा। क्यों? अन्याय नहीं करना है। मेयरली बिकॉज प्लेंटिव एक कोई ऑर्डर 37 में अपनी प्लेंट लेके आ गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बादशाह हो गया। डिफेंडेंट भी तो, उसके भी तो अपने लीगल राइट्स हैं, तो कहीं अन्याय ना हो जाए, कहीं लगे बाद में कि अन्याय हो गया तो फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रोसीजर इज ऑलवेज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, इट कैन नॉट बी द मिस्ट्रेस। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दीज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने सब रूल 7 पढ़ा था, रूल 3 का, और ये जो रूल हमने 4 पढ़ा है ये हमेशा याद रखना है। ऑर्डर 9 से कोरिलेट करके पढ़ना है। जैसे एक्स पार्टी डिक्री में भी यही पावर्स थी, यहाँ पे भी यही पावर्स हैं। एक चीज, गोल्डन चीज याद रखनी है, ओडी ऑल्ट्रम पार्टम हमेशा एक गोल्डन प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने आपको नीबा कपूर पढ़ के सुनाया, जहां सुनवाई नहीं हुई वहां उसका पलड़ा भारी होता है। अगर कोई सफिशिएंट रीजन कल को मिल जाए कि इस कारण से मैं नहीं आ पाया और वो जस्ट एंड रीजनेबल कारण हो तो फिर सेट असाइड हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस मेरा बेसिक ह्यूमन राइट है। सब रूल 5, पावर टू ऑर्डर bill etc to be deposited with officer or court. In any proceeding under this order, the court may order the bill, hundi or note to which the suit is founded to be forthwith deposited with any officer of the court, and may further order that all proceedings shall be stayed until plaintiffs give security for the cause thereof. Plaintiff के ऊपर क्या क्या liability है?
पहला पॉइंट ये है कि जिन कागजों पे वो कह रहा है कि मेरा इतना पैसा बनता है, ये चेक है, ये हुंडी है, ये प्रॉमिसरी नोट है, तो वो पहले जमा कराओ। नेचुरली इसकी भी जिम्मेवारी है कि वो पहले जमा कराए वो कागज जिसपे सारा शोर मच रहा है, तो सारा वो पहले जमा कराए। और अगर कोर्ट को लगे कि कल को डिफेंस उसका स्ट्रांग है, तो प्लेंटिफ को कह सकता है पहले कॉस्ट की सिक्योरिटी जमा कराओ, ऑर्डर 25 वाली जो है वो पहले आप वो भी जमा कराओ। तो प्लेंटिफ की लायबिलिटी बेसिकली है कि जिस कागज पे वो इतना कुछ मांग रहा है वो कागज तो जमा कराओ पहले, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर बाई चांस लगे कोर्ट को कि इसमें कॉस्ट प्लेंटिफ पे आ सकती है, तो वो पहले सिक्योरिटी उसकी जमा कराओ। रूल 6, the holder of every dishonored bill of exchange or promissory note shall have the same remedies for the recovery of the expenses incurred in noting the same for non-acceptance or non-payment or otherwise by reason of such dishonor as he has under this order for the recovery of the amount of such bill or note. कई बार क्या होता है, जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज रिजेक्ट होता है तो फिर क्या होता है कि एट दैट टाइम उसके खर्चा माइनस होता है। मैं एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। आपने एक चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक क्या करता है, उसमें आपके कुछ चार्जेस लगाता है, 150 250 जितना भी है। हो सकता है बड़ा अगर चेक है तो ज्यादा पैसा कटाओ, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ज्यादा पैसा कटता हो, जो भी है। तो जहां डिसऑनर होने में जो आपको चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस भी आपके चार्जेस हैं यहाँ पे, वो भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी आप लगा सकते हो। तो जो आपका खर्चा आया डिसऑनर होने में वो भी आपके चार्जेस हैं और वो भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर ऑन रूल 6। And finally, we have Rule 7. Rule 7, save as provided by this order, the procedure in suits hereunder shall be the same as procedure in suits instituted in an ordinary manner. अगर सूट अब उसने लीव टू डिफेंड दे दिया और अब सूट शुरू हो गया, तो फिर वो सूट वैसे ही चलेगा जैसे ऑर्डिनरी सूट्स चलते हैं। So now the suit, if it follows, will follow the same procedure as is a regular procedure of any suit. I hope I am clear on all the aspects of Order 37 dealing with what we just read as summary procedures. Now this is a very very important order, मैंने देखा जो हमने, and this brings us to an end of all special suits. हमने शुरुआत की थी ऑर्डर 27 से और अब हमने खत्म किया ऑर्डर 37 पे। इन पे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं डिटेल्स में, जैसे मैंने कराया उस तरह अपने नोट्स बनाने हैं, साथ साथ मैंने क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं, उनको इसी तरह से करो। ये आज के दिन में अपने मेंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द स्पेशल सूट्स। हमने पहले देखा एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर सूट का जो पहले 20 ऑर्डर में था। 22, 23, 24, 25 तक था हमारा, जो ट्रायल के साथ साथ पैरेलल प्रोसीडिंग चल सकती है। 26 था हमारा इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। 27 से 37 तक थे स्पेशल सूट्स। मोर और लेस वी आर थ्रू। अब हमारे 2 टॉपिक बचे, एग्जीक्यूशन and appeals, revision, review. Before I go into the last 2 topics of CPC, एक टॉपिक और बचा है हमारा, वो है miscellaneous proceedings. Miscellaneous proceedings very important short notes के एंगल से और prelims के एंगल। prelims में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। So my next topic is going to be all the miscellaneous proceedings which are now given in CPC. We'll take it up from here tomorrow. Thank you. God bless.